You are watching Khabar Face to Face. Today is a very special day in our lives because we all belong to different culture, different religion, different castes, different families. But this day of the 15th of August, year after year, we come together with one purpose. We stand united, not as Hindus, Muslims, Christians, but as Indians. Hence this day is of utmost importance to everyone who was born on this motherland India, who is a part of this beautiful nation which has given us everything. We keep grumbling, we keep talking about what we don't have. But today I want you as the youth of tomorrow, at the Gen Zs, Millennials, Gen Alphas, God knows what, to talk about what we have. बहुत आसान है बोलना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अरे ये गलत है, वो गलत है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. बड़ा आसान होता है एक उंगली उठाना. जब हम एक उंगली उठाते हैं किसी पे, तो हमें याद रखना है कि 4 उंगलियां हमारी तरफ भी उठती हैं. I would not want that artificial laughter. Thanks, Viraj. तो हमें ये याद रखना है बच्चे कि आगे जाने की जो राह है वो हमें ऊपर वाले ने दी हुई है. Even God has not given us 360. किसी के पास है यहाँ पर जो आउल की तरह 360 डिग्री अपनी गर्दन घुमा के मुझे दिखा सकता है? कोई कर सकता है 360 डिग्री ऐसे गोल घुमा के? नहीं, राइट? हम सिर्फ 180 डिग्रीज ही घुमा सकते हैं. और कोई बता सकता है ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ आगे ही देख सकते हैं और पीछे नहीं? What is the reason? What is the reason that God has given you a neck that allows you to only see ahead, to picture yourself in the future? Any teacher? Anyone? ऐसा क्यों है कि भगवान, ऊपर वाला, अल्लाह, जीसस, जो भी नाम से मुझसे बुलाते हैं, वो हमें सिर्फ आगे की दिशा में दिखाता है? What is the reason? Can you tell me? Very good. What's your lovely name? Noshin tells us ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आगे देख सकें. ये ऊपर वाला भी हमें यही दिखाता है कि तुम सिर्फ आगे देखो, पीछे देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है. आज जो भी एक्ट्स यहाँ पर हुए, जो भी परफॉर्मेंस हुए, those were A-class performances. But one thing that we all must gather is, instead of sitting on a चौराहा on a bike and grumbling कि ये गलत है, वो गलत है, अरे ये क्या है, ये गवर्नमेंट कैसी है, I think it's better हम ये देखें कि हम इस देश के वासी होके आगे किस तरह एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं. और हम इस देश में जहाँ रहते हैं, मुंबई, इस शहर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर कोई बंदा आके बोलता है कि अरे काम नहीं है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है. तो चाहे जो भी काम आपको मिले, छोटा बड़ा, उससे शुरुआत कीजिए. Especially here we have all these children who are standing in a white clad shirt. I would want you all to clap for the children who are in white shirts here. Yeah, these are the children who are volunteers for today's program. बहुत मुश्किल है कि हम 2-3 घंटा कंटिन्यूसली यहाँ पर खड़े रह के वॉलंटियर्स बने. इन्होंने अपनी शुरुआत आज इस छोटी सी पहल से की. जो भी आपको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसको ग्रैब कीजिए. ये मत सोचिए कि क्या हुआ, ये सोचिए कि क्या हो सकता. Do you promise me to do that? Yes. Do you promise to work hard? Yes. Do you promise to make MTHSJC proud of you? Yes. Do you promise to be the best Indian in the world? Yes. God bless you. Jai Hind. God bless all. Thank you. At Junior College for giving you the right direction and explaining you that you need to look forward. अगर आगे बढ़ना है तो आगे ही देखना है, पीछे नहीं देखना है. And as Noshin said कि हम आगे की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है. So it is a very good thing that on the occasion of 80th Independence Day, all my college students, on my school students, we all can think and decide that we can do something for our country.
you can contribute in your own way. There are many things in which you can contribute from your home, from your school, and from your life. So, only the leaders can do, only the high-end professionals can do, ऐसे नहीं है. You can also do many things for your country. Right now, what you can do is study hard, work hard, pass out 10th standard, pass out 12th standard, complete your graduation, become some professional, and get involved into the system of our country. That's what, as a student, you can do it. Thank you very much for coming here and being a wonderful audience on the occasion of 80th Independence Day. Now it's the time for announcing the best performance of the day. Correct? So, आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगा? Which one you like it? Nobody was crying? Then I think so you need to have emotions. ये वाला Gen Z के पास इमोशन नहीं है, ऐसे कुछ है? We are having emotions. I was literally about to cry, and Hiba, my daughter, was already crying. She is a Gen Z. She is only 21 years old. She is Gen Z, but she was crying. That means you need to recollect your emotions. जो भी एक्ट यहाँ पर परफॉर्म किए गए ना, that all were having wonderful messages on this occasion. Dances were there, but this year's Independence Day program was really special for us because our guest Haider Aslam Sheikh gave good amount of time, and he was there here during the program. He liked our program and the school premises and the audience very much. While going down, he praised it, and then out of that, all the best performance was of Suresh sir. So I request the director of the play, please come on the stage. So इतने सारे प्रोग्राम में जिसने रुलाया वो है सुरेश सर. Highly emotional act and a wonderful message given to the musical school by Supervisor of Mother Teresa Junior College, Suresh sir. Thank you, sir. Shifa miss. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. R.P. Yadav sir to present vote of thanks. धन्यवाद सिफारिश देंगे, इंकलाब का तूफान लिख देंगे. जितना चाहो मिटा लो दुनिया वालों, जितना चाहो मिटा लो दुनिया वालों, हम हर जर्रे जर्रे में हिंदुस्तान लिख देंगे. चलो उठो यहाँ से, उठो, चले उठ यहाँ से, उठो यहाँ से, चलो जाओ. एक तो बिना परमिशन के यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हो. चलो, अरे जाओ यहाँ से, उठो, निकलो यहाँ से जल्दी. स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वालों पर लाठियां चलाई, पत्थरबाजी की, जिससे पुलिस वाले हुए जख्मी. ये आज के बच्चों की मानसिकता कितनी दहशत गर्दाना हो गई है. देखो ना मैडम, कितने जोर से मारा बच्चों ने. देखो ना, खून निकाल दिया हमारा. Why are they behaving like terrorists? क्या इन्हें पड़ोसी देश से फंडिंग हो रही है? ये है हमारे देश की मीडिया, जिन्हें पिछले कुछ सालों से सच्चाई पर बात करने से जैसे परहेज हो गया है.
पिछले कुछ सालों में इस मीडिया ने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है और सच्चाई से लोगों को दूर रखा है। जो जिम्मेदारी मीडिया ने नहीं उठाई, वो जिम्मेदारी सोशल मीडिया के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने उठाई और पूरे देश भर में प्रोटेस्ट में होने वाली नाइंसाफियों को दिखाया, जिससे ये प्रोटेस्ट की आग सारे देश भर में फैल गई और देश के युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बट इन जेंजी स्टाइल। दोस्तों, हम भी प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। आशु किसकी व्यवस्था नहीं है का? दोस्तों, क्या आपको यह प्रोटेस्ट दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा है, लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा। हमें क्यों मार रहे हो? हम तो सिर्फ स्टूडेंट हैं। आपका बैच किधर है? आपका यूनिफॉर्म किधर है? आप बिना यूनिफॉर्म के हम पर एक्शन नहीं ले सकते। जब हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब हमने ये नहीं सोचा था कि युवाओं को पढ़ाई के लिए इतना जद्दोजहद करना पड़ेगा। जंजीरें बदल चुकी हैं। पहले ये लोहे की थी, लेकिन अब करप्शन की है। ये चिंगारी नहीं बुझनी चाहिए, इसे शोलों में बदल दो। और जिन लोगों को लगता है कि जनता सिर्फ धर्म के नाम पे झुकेगी, तो ये उनकी गलत सोच है। किताबें और उसकी नॉलेज बंदूक की गोलियों से भी ज्यादा ताकतवर है। बिना हिंसा के, बिना नफरत के, सिर्फ तुम अपनी आवाज बुलंद रखकर, आसान रास्तों को छोड़कर तुम ऐसा देश बना सकते हो जहां पर हर बच्चा कामयाब हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आजाद है ये देश, आज आजाद है, नाबाद है यहाँ का युवा भी नाबाद है। फिर भी मेरी एक फरियाद है, ये देश क्यों बर्बाद है? ना जाने इस देश को क्या हुआ, लगी इसकी बददुआ। ना जाने क्या क्या नहीं हुआ, आजादी के बात पे बली हुआ, कितनी बार ठीक नहीं हुआ। साथ सब लोग बोल रहे थे चच्चा होगा, लेकिन बच्चे बातें पर हुआ तल्ली। कुछ फिर जल्दी बोले पब्लिक का गई, पब्लिक स्टेशन में गए थे, स्टूडेंट गए थे, बेहतर मतलब नहीं देखा था उन्होंने कहा गलत। निकले थे अपने घर से लेके सपना ये कुछ अपना अच्छा खासा, उन्होंने सोचा था कि कुछ होगा अच्छा, उनके साथ कुछ नहीं हुआ अच्छा। लगी उनको चोट लगी, उनको खोट मारा गया, उनको बड़ा है सुन। सड़क पे उनके ही बदनामी, कोई जाके मार रहा है, कोई भी बोल रहा है इधर इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। तुमको चाहिए इंसाफ तो जाओ कोर्ट में, कोर्ट तुम्हें कुछ भी नहीं देगा, तुमको भी इंसाफ मिलेगा। अगर तुम इधर आए लड़ने को, तुमको सीधा गलत आ जाएगा, गलत आएगा, तुमको नहीं समझेंगे तो गलत आदमी। हाँ, देश को कोई सम्मान नहीं है, देश से किसी को प्यार नहीं है, देश जिंदा है इस हालात में हमारे साथ नहीं है कोई। ये बात नहीं है वो जो समझ रहा है कोई, हर सभी को समझ में आएगा जब एक कटेगा देश। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। I request everyone, please ready for pledge. जब मैं कहूँ मेरे बात प्लीज दोहराइए, क्योंकि हमारे साथ हमारे जेंजीज अवेलेबल है। We pledge that we will never choose shortcuts over hard work.
We will never support cheating, corruption, or unfair means. We will raise our voice against injustice with courage, discipline, and respect. We will honor our parents' sacrifices, respect our teachers, and value every opportunity to learn. We believe that true success is earned through honesty and dedication. We will strive to build an India where every deserving student gets an equal chance to succeed. We pledge to protect the dignity of education and to become responsible citizens who strengthen our nation. Jai Hind. Speech was very good. को आगे बढ़ाने में स्वर्गीय आमिर खान सर का योगदान सदैव याद रहेगा। उन्होंने अपने जीवन में सेवा लास्ट वन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। बैक टू स्ट्रेट रखो। लास्ट वन। हाँ, मार रेडी। Don't blink your eyes. Wait. Smile. Hey, bhai. Wait. One more. Last one. Last. Wait. One more. Last one. Don't blink your eyes. Last one. Wait.